Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So here I am with the third and the last video on the topic 4.1 History of Novel from section 4 class 12th English. In my earlier videos that I posted on the channel on History of Novel part 1 and part 2, we discussed about meaning of novel. We also learned about origin and development of novel as a new genre in detail. We also discussed in detail about elements of novel. In this third part, we will be learning about types of novel. So without further delay, let's start learning. You can see on screen these are the major types of novel: realistic novel, picaresque novel, historical novel, epistolary novel, gothic novel, autobiographical novel, allegorical novel, utopian dystopian novel, psychological novel, stream of consciousness novel, and Bildungsroman novel. Now let us look at each one of these in detail. We will start with realistic novel. So realistic novel is a fiction, a story that gives the effect of realism, also called a novel of manner, and it is characterized by complex characters with mixed motives rooted in the social class. The characters in the story interact with each other and they undergo plausible and everyday experiences. So रियलिस्टिक नॉवल एक ऐसी नॉवल होती है, ऐसी स्टोरी होती है जो कि बहुत रियल लगती है। पढ़ने के बाद वो स्टोरी और उसके किरदार, उसके जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ही रियल लगते हैं। जैसे हमारे आसपास लोग होते हैं, वी ऑल आर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स। हम सब का जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वी ऑल हैव सम गुड क्वालिटीज़ एंड सम बैड क्वालिटीज़। वी ऑल हैव मिक्स्ड मोटिव्स। तो जिस तरह के हम रियल लाइफ में होते हैं वैसे ही रियलिस्टिक नॉवल की स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रियलिस्टिक नॉवल। नाउ नेक्स्ट वन, पिकारेस्क नॉवल. The word picaresque is derived from Spanish word picaro, meaning rogue. It means someone who has lots of defects, someone who is dishonest. So picaresque novel is a novel that narrates or that tells the story of a protagonist who is eccentric or disreputable person. Eccentric meaning someone who is unusual. सो पिकारेस्क नॉवल ऐसी नॉवल होती है जिसका जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटोगनिस्ट है, वो एक एक्सेंट्रिक पर्सन है, समवन हैविंग अ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर और पर्सनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी, Shahid Kapoor's movie called Kabir Singh. In that movie, in that story, the protagonist Kabir Singh is not the usual Bollywood hero or not the usual hero material. He had lots of issues in his personality. He had lots of defects and problems. So it means he was an eccentric and disreputable person in his surrounding, but he was the protagonist of that मूवी. सो पिकारेस्क नॉवल इज़ अ नॉवल जहाँ पे एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे इंसान की स्टोरी जो कि एक डिसरिप्यूटेबल पर्सन है, जो कि हीरो जैसे बिल्कुल नहीं लगता है. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल नॉवल. वेरी सिंपल इट इज़. व्हेन अ स्टोरी इज सेट इन अ पीरियड विच इज़ अर्लियर देन दैट ऑफ द राइटिंग. आज के टाइम पे अगर हम गुजरे हुए किसी चीज़ या गुजरे हुए इवेंट या टाइम के ऊपर स्टोरी लिखते हैं तो वो होती है हिस्टोरिकल नॉवल. एपिस्टोलरी नॉवल. द वर्ड एपिस्टोलरी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एपिस्टोला विच मीन्स लेटर. तो यहाँ पे जो राइटर है वो पूरी स्टोरी लेटर्स के फॉर्मेट में हम तक पहुँचाता है. कहानी के बजाय बुक में, स्टोरी में कैरेक्टर्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं लेटर्स और बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स, जिसकी वजह से हमें कहानी समझ में आती है. डायरी एंट्रीज़ भी एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है, बहुत पॉपुलर टाइप है इस फॉर्मेट का. Gothic novel. So novels including terror, mystery, horror, thrillers, supernatural, doom, death और decay, haunted buildings, etc. ये सारी टाइप की जो नावल होती है वो गॉथिक नावल होती है. बेसिकली डरावनी या डर से, मिस्ट्री से भरी हुई.
नेक्स्ट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल आई एम श्योर एवरीवन नोज़. जब ऑथर अपनी खुद की लाइफ के ऊपर एक कहानी लिखता है, एक स्टोरी लिखता है, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑथर अपना एग्जैक्ट नाम या एग्जैक्ट डिटेल और अपने आसपास के जो कैरेक्टर्स उसकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है उनके एग्जैक्ट नेम या प्लेसेस को यूज़ करें. कई बार ऑथर्स अपने जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उसको या तो ओमिट कर देते हैं या फिर उसको चेंज कर देते हैं. एंड इट मे और मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन. ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई हो. फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और मी एंड माई सेल्फ. हो सकता है जो ऑथर है वो स्टोरी को इस तरह लिख रहा होता है जैसे वो किसी और की कहानी को बता रहा है. नेक्स्ट, एलेगोरिकल नॉवल. एलेगोरिकल नॉवल एक ऐसी नॉवल होती है जहाँ पे एग्जैक्ट स्टोरी और जो मीनिंग है उसके अलावा भी बहुत सारे उसके मीनिंग निकलते हैं. द स्टोरी बेयर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग. द सरफेस मीनिंग ऑफ सच नॉवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ इट. तो स्टोरी एक तरीके से चल रही होती है, उसका एक सिंपल मीनिंग होता है जो ऐसे हमें सामने से नज़र आ रहा होता है, बट उसका एक डीपर मीनिंग भी हो सकता है. सो अ स्टोरी हैविंग मोर देन वन मीनिंग is called an allegorical novel. Then यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवल. ये एक इमेजिनरी कम्युनिटी या सोसाइटी के ऊपर होती है. व्हेन वी इमेजिन के हाउ अ परफेक्ट सोसाइटी, हाउ अ परफेक्ट वर्ल्ड वुड बी, व्हेन वी जस्ट फैंटेसाइज अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली रियल. सो ऐसे सारे मुद्दों पे जो भी स्टोरी होती है वो होती है यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवल. इसमें स्पेशली इंक्लूड होते हैं साइंस फिक्शन और स्पेक्युलेटिव फिक्शन. जब हम सिर्फ गेस कर रहे होते हैं कि आगे चल के ऐसे हो सकता है या अगर ऐसे होगा तो कैसे होगा, तो ये सारी जो थीम्स पे नॉवल होती है वो होती है यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवल. Next, psychological novel. It is a work of fiction that treats the internal life of the protagonist or even the other characters as much as the external factors. अगर कहानी में इंसान के खुद के इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना कि आसपास हो रहे बाहर के इवेंट्स में, तो उस कहानी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल. जहाँ पे कैरेक्टर के अंदर चल रहे जो चेंज और चीज़ें हैं उस पे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है जितना कि बाहर उसकी ज़िंदगी में घटने वाले इवेंट्स को. Next, stream of consciousness novel. Stream of consciousness is a phrase coined by William James in his treatise Principle of Psychology. It means the flow of thoughts. जहाँ पे कहानी में इंसान के अंदर जो भी थॉट्स और जो भी ख्याल, उसके जो भी इमोशंस, जब इंसान अपने आप से बात करता है तो वो क्या बोल रहा होता है, वो क्या फील कर रहा होता है, जब वो उसके दिमाग में सब चलता होता है, तो राइटर जो है वो सारी बातों को लिखता है. और इन सब बातों को जब राइटर लिखता है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी जब समझा रहा होता है तो उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. एंड लास्ट इज़ बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल. बिल्डिंग्सरोमन जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रोथ. ये एक ऐसी फिक्शनल कहानी होती है जहाँ पे जो प्रोटोगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका पूरा ग्रोथ जर्नी दिखाया जाता है चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक. So here it is a fictional biography or autobiography wherein we are told the story of growth or the development of the protagonist's mind, spirit and character from their childhood to adulthood. किसी इंसान की कहानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर उसकी स्टोरी बताई जा रही होती है, कोई एक इंसान की, कोई एक कैरेक्टर की, तो उसे कहते हैं बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल. तो ये थे मेजर टाइप्स ऑफ नॉवेल. अब इनके अलावा कुछ और 2-3 चीज़ें हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है. वो है पल्प फिक्शन. ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. इट हैड बिकम अ कल्ट. कल्ट का मतलब होता है क्रेज़, ट्रेंड या फैशन.
तो एक कल्ट निकला था, वो था पल्प मैगज़ीन का, जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। फैंटास्टिक फिक्शन जिसमें जनरल एंटरटेनमेंट लोगों के लिए प्रिंट किए जाते थे चीप पल्प पेपर पे। बहुत कलरफुल और बहुत चीप पल्प पेपर होता था, उस पर ये बहुत सारी स्टोरीज़ उस टाइम पे बहुत अवेलेबल होने लगी, तो अब उसे कहते हैं पल्प फिक्शन। और ये जो पल्प फिक्शन ईरा था, अर्ली इट वाज इन अर्ली 90s, सो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इस डेवलपमेंट की वजह से, पल्प फिक्शन की डेवलपमेंट की वजह से आगे चल के दो और नए सब जॉनर्स का डेवलपमेंट हुआ। उसके लिए बिल्डिंग ग्राउंड प्रोवाइड किया पल्प फिक्शन ने, वो थे साइंस फिक्शन एंड डिटेक्टिव फिक्शन। साइंस फिक्शन एक जॉनर है स्पेक्यूलेटिव फिक्शन का, डीलिंग विद इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट सच एज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल। आजकल ऐसी मूवीज़ बहुत बन रही है, हॉलीवुड में स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस है साइंस फिक्शन, जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन के आ रही है। और ट्रेंड है, ये क्रेज़ है, आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं साइंस फिक्शन को। तो ये साइंस फिक्शन का ग्रोथ हुआ था पल्प फिक्शन की वजह से। सो ऐसे सारे मूवीज़ या ऐसे सारी स्टोरीज़ या नॉवेल जो कि ऐसे टॉपिक्स पे बेस्ड होती है जो कि साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आता है। स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ, एलियन, ऐसे सारे टॉपिक्स पे अगर जो स्टोरीज़ होती है उसे हम कहते हैं साइंस फिक्शन। And it explores the potential consequences of scientific and other innovation। यहाँ पे साइंस फिक्शन में मोस्टली फोकस होता है कि अगर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं साइंटिफिक फील्ड में, अगर इतना ज़्यादा इनोवेट होगा तो आगे चल के कैसे होगा। अगर हम इतना ज़्यादा डेवलप कर पाए कि हम टाइम ट्रैवल कर पाए तो क्या होगा, क्या क्या स्टोरी बन सकती हैं। तो इन सब मुद्दों पे राइटर्स लिखते हैं। और लास्ट है डिटेक्टिव फिक्शन। ये भी एक सब जॉनर है क्राइम फिक्शन का, और यहाँ पे मिस्ट्री जो है मेन एलिमेंट होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका एक अलग ही फैन बेस है। यहाँ पे स्टोरी ये होती है कि कुछ क्राइम हुआ है, जनरली जो कि मर्डर होता है, जिसको एक इन्वेस्टिगेटर जो यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट होता है उसे डिटेक्ट कर रहा होता है, उसकी छानबीन कर रहा होता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर है, या तो ये प्रोफेशनल होता है या तो ये अमेच्योर होता है। सो ये डिटेक्टिव फिक्शन भी एक अलग ही सब जॉनर है क्राइम फिक्शन का। So that was it for today. Types of novel we learned, and we learned about pulp fiction, science fiction and detective fiction. With this we come to the end of the video, and we also finish the topic 4.1 history of novel. If you like the complete series, give a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Keep learning. Thank you very much.